Good afternoon, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, chapter number 2, diversity and discrimination. And this is our lecture number 2. So let's start. So students, so far we studied about the differences and prejudice. So differences, what are differences? Actually, you know that people are different in terms of living, eating, speaking, clothing, and various other things. And difference are influenced by geography and history of the place where we live. So, student, yesterday we have already discussed about a question that diversity is not always celebrated. Why? You know, people don't feel safe and secure with people who don't look, talk, dress, or think like them. Okay. And you know that there are 8 major religions in the world. Every single one of them is practiced in India. And we have more than 1600 languages that are people's mother tongues. And there are more than 100 dance forms. Okay, so students, actually differences are influenced by geography and history of the place where we live. तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि जो ये differences है यानी जो हमारी diversity है वो it is good. Diversity is good, but diversity is not always celebrated. Why? Why? ये हमने डिस्कस भी किया था अपने पिछले लेक्चर में कि people don't feel safe and secure with people who don't look, talk, dress and think like them. And people also form certain attitude and opinion about others who are not like them. For example, villagers as ignorant and superstitious, while people in cities as money-minded, lazy and cunning. Okay, so now then next topic we discuss about the prejudice. So prejudice, what is prejudice? So prejudice mean to judge other people negatively or see them as inferior. For example, if we think English is the best language and the other languages are not important, so we are judging these other languages negatively. As a result, we might not respect people who speak languages other than English. And we can be prejudiced about many things, such as about people religious beliefs, the color of their skin, the color of their skin, the reason they come from the accent they speak in, the clothes they wear, etc. Okay, so now then next we discussed about the creating stereotypes. So all of us are familiar with gender differences. Okay, and stereotype affects all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. So what is stereotype? So stereotypes stop us from looking at each person as unique individual with his or her own special qualities and skill that are different from others. Okay, so here, yes, from here we are discussing. Yes, today we will discuss from here कि when we fix people into one image, we create a stereotype. ओके जब हम किसी इंसान की एक इमेज बना देते हैं फिक्स कर देते हैं तो ये किसको क्रिएट करती है स्टीरियोटाइप को एंड व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री रिलीजन सेक्स
race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb. They are using stereotype. ओके जब हम किसी भी कोई भी मान लो किसी एक पर्टिकुलर कोई किसी पर्टिकुलर कंट्री से रिलीजन से सेक्स रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है और हम उसको उसके अकॉर्डिंग उसको किसी क्या कर रहे हैं उसको स्टिंगी लेजी या क्रिमिनल्स ठीक है कंजूस लेजी क्रिमिनल या डम डम जो है वो हमने उसको उस हिसाब से माना हुआ है कि अगर वो किसी पर्टिकुलर रीजन से मालूम किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में कहते हैं कि वो कंट्री क्या है बिल्कुल क्या है कि वो वहां पर मतलब हम किसी कंट्री को बिल्कुल डंप कर देते हैं डम मान लेते हैं ठीक है या किसी रिलीजन को या सेक्स रेस एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड किसी को हम इस टाइप से स्टिंगी लेजी क्रिमिनल या डम की फॉर्म में उनको बता देते हैं फिक्स कर देते हैं उनका एक फैक्टर तो वो क्या होगा स्टीरियोटाइप्स एंड देयर आर स्टिंगी एंड जीनियस पीपल एवरीवेयर in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female. तो अब हमने तो ये पूरा ठान लिया कि भाई वो कंट्री इस तरीके की है या वो रिलीजन ऐसा है या इकोनॉमिक बैकग्राउंड उस कंट्री की या उस पर्सन की ऐसी है लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है देयर आर स्टिंगी एंड जीनियस पीपल एवरीवेयर हर जगह आपको इस तरह के स्टिंगी इस तरह के कंजूस और इस तरह के जो आपको डम जो होते हैं आपके बिल्कुल डम होते हैं ऐसे लोग आपको सब जगह मिलेंगे लेजी पर्सन आपको सब जगह मिलेंगे स्टिंगी पर्सन आपको सब जगह मिलेंगे हर एक कंट्री में मिलेंगे हर एक इन एवरी रिलीजन हर एक रिलीजन में एवरी ग्रुप में आपको कहीं ना कहीं रिच और पुअर पीपल मेल और फीमेल सब तरह के लोग मिलते हैं बट एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इट इज नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम लेकिन सिर्फ कुछ एक लोग क्योंकि एंड जस्ट बिकॉज सम ऑफ पीपल आर लाइक कि कुछ एक लोग उसी तरीके के हैं तो हम ये फेयर नहीं है ये सोचना कि एवरीवन विल बी द सेम कि हर कोई एक जैसा है तो स्टीरियोटाइप stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special quality and skills that are different from others तो इसलिए स्टूडेंट क्या होता है कि स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल कि जो स्टीरियोटाइप है ना ये हमें हमारे माइंड को क्या कर देती है बाउंड कर देती है हमें सिर्फ एक लिमिट तक हम सोचते हैं ठीक है क्योंकि ये हमारे सोचने पर रोक लगा देती है कि हम किसी भी एक इंडिविजुअल की किसी एक व्यक्ति की एक यूनिकनेस को हम जाने विच इज और आवर ओन स्पेशल क्वालिटी हम किसी की स्पेशल क्वालिटी जो है अगर किसी की उसको जाने उसको पहचाने एंड स्किल दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स जो उसको दूसरे से अलग बना सकती है so they fit large numbers of people not only one pattern or type okay so they fit large number of people वो क्या करते हैं एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल को केवल एक ही पैटर्न या टाइप में फिक्स कर देते हैं so stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise to be good to otherwise be good at. तो अब ये जो स्टीरियोटाइप है ये हम इसमें ऐसे बिलीव कर लेते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है इसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए ठीक है हम उसको ऐसा मान के दिमाग में ना अपना एक ऐसा लेकर चलते हैं उस चीज को तो हम वहां पर हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है कि ये जो स्टीरियोटाइप है ये हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल देती है और कई बार ये जो स्टीरियोटाइप इस तरह के जो एस्पेक्ट्स होते हैं तो ये हमें ऐसा काम करने से रोकती है जिनको करने की शायद हमारे अंदर वो काबिलियत है तो हम वो काम करते ही नहीं है तो स्टीरियोटाइप अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स कुछ ऐसी चीजें जो हम कर सकते हैं बहुत अच्छे बेटर तरीके से कर सकते हैं बट ये स्टीरियोटाइप हमारे ऊपर इस तरीके का इफेक्ट डालती है कि हम वहां पर हम वो नहीं करते क्लियर जैसे हमने माना है बॉय अगर हम जेंडर वाइज देखें ठीक है अगर हम जेंडर वाइज देखें यहाँ पर तो हमने एक माइंड में बिठाया हुआ है कि बॉय जो है वो बाहर उसका काम क्या है कि वो बाहर जाता है बाहर जाकर वो काम करेगा पैसे कमा कर लाएगा गर्ल्स का काम क्या है कि घर में रहना है
घर के काम सीख रहे हैं, उसको मैरिज करके दूसरे घर जाना है। तो ये क्या है, ये स्टीरियोटाइप है जो हमने क्रिएट किया हुआ है, स्टीरियोटाइप कि गर्ल्स ऐसी हैं, बॉयज ऐसे हैं। ठीक है, तो लेकिन क्या ऐसा कोई काम है जो गर्ल्स नहीं कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। या क्या बॉयज गर्ल्स वाले काम नहीं कर सकते हैं? क्या वो खाना नहीं बना सकते? सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये स्टीरियोटाइप हमें इस तरीके की फीलिंग करवाता है, इस तरीके का हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है। ओके, so student, here a picture is given in your book. So people, देखिए, so the children you see in the illustration here are seen as disabled. अब यहाँ पर अगर देखिए इस पिक्चर को, इस पिक्चर में क्या है, देखिए आपके पास ये दिस वन एंड दिस वन। ओके, ये जो थ्री आपके पास, ये बॉय, एक बॉय यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये गर्ल दिख रही है, बॉय दिख रहा है। तो यहाँ पर ये तीनों की तीनों जो चिल्ड्रन, ये जो चिल्ड्रन है, तुम देख सकते हो कि इन्हें हम क्या बोलते हैं, डिसेबल। ओके, यानी जिनमें काम कर, डिसेबल यानी कि जो आप विकलांग शब्द यूज करते हो। सो दिस टर्म हैज बीन चेंज्ड एंड नाउ टर्म्ड एज अ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब हमने ये डिसेबल वर्ड यहाँ पर इन ऐसे बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए अब हमने डिसेबल वर्ड बंद कर दिया है और इसकी जगह चेंज करके दूसरा नाम क्या रख दिया गया है, ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल नीड्स। So common stereotype about them are given in large letters and their one feeling and thoughts too are given. देखिए यहाँ पर ऐसे बच्चों के लिए जो मतलब स्टीरियोटाइप जो बना हुआ है, स्टीरियोटाइप मतलब कि हर किसी की जो सोच है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए ये इस बच्चे के लिए क्या है, क्या लिखा हुआ है कि पीपल से ऑल सोर्ट्स ऑफ थिंग्स, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ठीक है, सो यहाँ वो अपनी 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 क्या बता रहा है, अब अपनी व्यूज बता रहा है वो बच्चा। यहाँ पर साथ में ये भी दिखा रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्या कह रहा है, वो कह रहा है आई लिव ऑल दिस एंड मोर, समटाइम्स आई फील सो सैड एंड सो folks make fun, it's nothing new, if you were I what would you do। वो कहते हैं मैं आई आई लिव, मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी मैं मैं मेरी जो बोली है वो भी लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी मैं दुखी हो जाता हूँ, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। ओके, एंड द सेकंड, इन द सेकंड पिक्चर हियर, यू लुक सो डिफरेंट, यू लुक सो डिफरेंट। ये दूसरा जो स्टीरियोटाइप ऐसे बच्चों को देखकर बोलते हैं। सो वो बच्चा क्या बोल रहा है, आई एम अ पर्सन आई फील शाई फ्रॉम स्टेयरिंग आईज आई वांट टू हाइड। कि आई, वो कह रहा है कि आई एम अ पर्सन, मैं एक इंसान हूँ, एंड आई फील शाई, मुझे शर्म आती है। किससे शर्म आ रही है, फॉर स्टेयरिंग आईज आई वांट टू हाइड, इन घूरती हुई आंखों से जो मैं छिप जाना चाहता हूँ। जो लोग मुझे घूरते हैं, मेरी इस बेबसी पर मजाक उड़ाते हैं, मुझे घूर रहे हैं, तो मैं ऐसे आंखों से छुप जाना चाहता हूँ। एंड द थर्ड, इन द थर्ड पिक्चर, इज हर माइंड ओके, क्या उसका जो माइंड है वो ओके है। ओके, यहाँ पर देखिए वो पिक्चर बना रहा है, यहाँ पर पेंटिंग कर रहा है। तो जस्ट बिकॉज माई लेग्स आर वोबली, पीपल थिंक माई माई माइंड इज वोबली टू। कहते हैं कि अगर सिर्फ क्या है कि मेरी टांगे ही डगमगाती हैं, और लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। नहीं, तो बच्चों यहाँ पर इस पिक्चर से आपको क्या समझने को मिलता है कि ये जो पिक्चर्स हैं इसमें सिर्फ ये बच्चों के पास एक चीज ही तो नहीं है कि इनके पास, इनको क्या है, थोड़ी प्रॉब्लम है अपने लेग्स को लेकर, और तो इनके अंदर और दूसरी चीजें भी तो हैं। जैसे ये बच्चा पेंटिंग कर सकता है, ये बच्चा ऐसा नहीं है कि चलने, अगर ये चलने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो ये और काम नहीं कर सकता, ये गर्ल जो है ये और काम नहीं कर सकती। तो ये क्या है, इनके पास कुछ ना कुछ और चीजें हैं जो ये कर सकते हैं, लेकिन हम जो लोग हैं उनके जो थिंकिंग है वो अलग हो जाती है। ओके, तो हमें इस बारे में आप सोचें और अपने व्यूज जो है अपने बताने हैं। So now the next topic is inequality and discrimination. Inequality and discrimination. Okay, so student, actually our chapter name is diversity and discrimination. So diversity हमने देखा, diversity क्या है, सिर्फ एक डिफरेंस है
कि हमारी डाइवर्सिटी मीन्स जहाँ पर हमारी कंट्री में अलग अलग लैंग्वेजेस के, रिलीजन के, रेस, ठीक है, ठीक है, ऐसे लोग रहते हैं। तो डाइवर्सिटी इज अ गुड कंसेप्ट। ओके, यहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जा रही है, तो ये कोई डाइवर्सिटी जो है वो इसमें किसी तरह का लॉस नहीं है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन क्या है? जब डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जब आप उसी डाइवर्सिटी को लेकर लोगों के बीच में क्या करते हो, उसको उनको डिस्क्रिमिनेट करते हो। तो डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता है वो एक प्रॉब्लम है। हमने देखा पीछे, हमने दो टू कंसेप्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। व्हाट इज प्रेजुडिस? फर्स्ट इज प्रेजुडिस एंड सेकंड इज स्टीरियोटाइप। ओके, सो प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप, इन दो से हमने देखा कि कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं हम लोगों को। ओके, प्रेजुडिस में जब हम नेगेटिवली कोई विचार, किसी चीज का नेगेटिवली हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं। स्टीरियोटाइप में जिसमें हम पहले से ही एक धारणा लोगों के बारे में बनाते चले आते हैं और वैसे ही हम उसको फॉलो करते हैं। नाउ द थर्ड कंसेप्ट इज इनइक्वालिटी। ओके, इनइक्वालिटी जो है वो भी डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देती है। डिस्क्रिमिनेशन होता है इसकी वजह से, इनइक्वालिटी की वजह से। ओके, सो इनइक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी बोथ आर द डिफरेंट कंसेप्ट। Okay, so discrimination happens when people act on their prejudices or stereotypes. If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in a certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as other, you are discriminated against them. So student, discrimination कब होता है? Discrimination happens when people act on their prejudice or stereotype. जब जो लोग हैं वो prejudice और stereotype के जो concept है उस पर हम क्या करते हैं, उस तरीके से उनके उनके ऊपर हम अपना अपने एक्ट करते हैं, prejudice and stereotype पर हम अपने एक्ट करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन आता है। जैसे इफ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, कि अगर आप कुछ लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं। इफ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज, अगर आप उन्हें कुछ एक्टिविटीज में पार्ट लेने के लिए मना करते हैं। एंड टेकिंग अप जॉब्स, या आप उनको कोई जॉब करने से मना करते हैं, कोई स्पेसिफिक जॉब करने से मना करते हैं। और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड, या तुम उनको अपने नेबरहुड में, अपने पड़ोस में रहने से मना करते हो। प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम सेम वेल और हैंडपंप, या फिर जिस वेल से आप पानी ले रहे हो या हैंडपंप से पानी ले रहे हो वहां से उनको पानी लेने से मना करते हो। और नोट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप और ग्लासेस और एज अदर, या फिर तुम जैसे कोई दूसरे कोई भी ग्लास या कप यूज कर रहे हैं पानी चाय पीने के लिए, तो आप उनको उन कप में, उन ग्लासेस में को यूज करने से मना करते हो। सो यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम। देन क्या कर रहे हो तुम तब उस इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहे हो, तुम उसके साथ भेदभाव कर रहे हो। ओके, ये होता है डिस्क्रिमिनेशन। सो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। ओके, so discrimination can take place because of several reasons. You probably recall from the previous chapter that Samir Ek and Samir Do were different from each other in many ways. Okay, we have already discussed this, the conversation, yeah, the story of Samir Ek and Samir Do. You know that कि Samir Ek and Samir Do in our first chapter of civics, there a story of Samir Ek and Samir Do. Okay, so there are some differences between them, Samir Ek and Samir Do. So what are the differences? For example, they belong to different religions. दोनों के दोनों अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे। सो दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है, बिकॉज दे दे बिलोंग फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं। सो दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। तो ये किसका एस्पेक्ट है? डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट है। So however, this diversity can also be a source of discrimination. ठीक है, अब ये डाइवर्सिटी है, बट इस डाइवर्सिटी को हम डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स जरूर बना सकते हैं।
अगर हम किसी को रिलीजन के बेस पर उसके साथ क्या करते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उसके साथ भेदभाव करते हैं, तो वहां डिस्क्रिमिनेशन आ सकता है. सो ग्रुप्स ऑफ पीपल who may speak a certain language, follow a particular religion, live in a specific region, etc., may be discriminated against as their custom or practices may be seen as inferior. मान लो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो कोई अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, एक स्पेसिफिक रीजन में रहते हैं, तो वहां पर वो अपने मतलब वहां पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, और ये हो सकता है कि उनके कस्टम को, उनकी प्रैक्टिसेस को दूसरे के कंपैरेटिवली इंफीरियर समझा जाए, यानी उनको नीचा देखा जाए, निचले लेवल से देखा जाए उनको. ओके, सो अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीज was in their economic background. So now, yes, so another difference between Samir 1 and Samir 2 is कि इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा था, यू नो दैट समीर दो, समीर एक वाज अ रिच, ठीक है, रिच बॉय, एंड समीर दो वाज अ पुअर बॉय. ओके, सो समीर दो वाज पुअर. So this difference, as you have read earlier, is not a form of diversity. अब यहाँ पर रिच एंड पुअर वाली आ गई, रिच एंड पुअर वाली सिचुएशन आई, सो इट्स नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी का फॉर्म नहीं हो गया, इट इज अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी. ठीक है, रिच एंड पुअर, सो ये कंसेप्ट किसका है, ये इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है, कि समीर दो इज अ पुअर बॉय एंड समीर एक इज अ रिच बॉय. सो यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पर ये कंसेप्ट है इनइक्वालिटी का, नॉट अ डाइवर्सिटी. सो पीपल हु आर पुअर do not have the resources or money to meet their basic needs of food, clothing and shelter. अब जो लोग पुअर हैं, जो उनके पास मनी नहीं है, तो वो क्या कर सकते, वो क्या होंगे, वो अपनी बेसिक नीड्स जैसे फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर्स, ठीक है, उन बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते, बिकॉज दे हैव नो मनी, दे आर पुअर. So discrimination, they experience discrimination in offices, in hospitals, schools, etc. क्योंकि वो पुअर हैं, that's why वो डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ. कहाँ पर हो सकता है, ऑफिसेज में भी हो सकता है, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, हर जगह उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, बिकॉज दे आर पुअर. So where they are treated badly because they are poor. Okay, so some people some people may experience both kind of discrimination. अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इन दोनों तरह के एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, यानी वो किस में आते हैं, डाइवर्सिटी तो है ही है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन भी होता है. सो दे आर पुअर, ठीक है, वो पुअर है एंड दे बिलोंग टू अ ग्रुप्स हुज कल्चर इज नॉट वैल्यू. और दूसरा, वो ऐसे ग्रुप से आते हैं, ऐसे मतलब कि वो ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं जिनके कल्चर को कोई वैल्यू नहीं दी जाती, तो उनको दोनों तरीकों से वो डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं. एक तो उनको जो उनका कल्चर है, उस कल्चर को भी वैल्यू नहीं दी जा रही है, दूसरा वो पुअर है. सो ट्राइबल्स, ऐसे ग्रुप कौन से होंगे, जैसे ट्राइबल्स, सम रिलीजियस सम रिलीजियस ग्रुप्स, एंड इवन पर्टिकुलर रीजन्स, कुछ ऐसे पर्टिकुलर रीजन्स हैं, एरियाज हैं, वो भी are discriminated against for one or more of these reasons. तो ट्राइबल्स, सम रिलीजियस ग्रुप, जैसे आदिवासी लोग हो गए, ट्राइबल्स हो गए, सम रिलीजियस ग्रुप्स हैं, ठीक है, एंड इवन जो पर्टिकुलर रीजन को, एक पर्टिकुलर रीजन है, एरिया है, वहां पर आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फ्रॉम वन और मोर ऑफ दीज रीजन, उनको भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन वाली पॉलिसी अपनाई जाती है इन एक या दो से ज्यादा कारणों से. सो इन द फॉलोइंग सेक्शन we will look at now we will look at now we will look at how a famous Indian was discriminated against. अब हम जो नेक्स्ट सेक्शन स्टडी करेंगे उसमें हम देखेंगे कि कैसे एक फेमस इंडियन जो था, एक फेमस इंडियन था, जिसको जिसको इस डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ा. एंड दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वेज in which caste was used to discriminate
against large number of people. So student, here look at this picture. एंड अभी हमने क्या स्टडी किया, हमने स्टीरियोटाइप जो स्टडी किया था, तो स्टीरियोटाइप हमने कहा कि एक ऐसा मतलब हमने एक क्या बना लेते हैं, हम लोग एक धारणा बना लेते हैं किसी चीज को लेकर। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक बहुत बड़ी बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर। ये कौन है, ये कुछ मुस्लिम गर्ल्स की पिक्चर दी हुई है। ओके, सो अ कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट सम मुस्लिम्स इज दैट they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school. Actually एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो अपनी जो अपने वहां पर जो उनके गर्ल्स चाइल्ड होता है, गर्ल चाइल्ड होती है, वो मुस्लिम जो है उनको स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजते। ठीक है, तो ये एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि वो अपनी जो मतलब गर्ल चाइल्ड होता है उसको स्कूल भेजने के लिए वो तैयार नहीं होते मुस्लिम। लेकिन ये क्या है, रोंग है। क्योंकि मेन रीजन क्या होता है, मेन रीजन ये नहीं है कि उन्होंने अपनी जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, उनको स्कूल में नहीं भेजना, उन्हें नहीं पढ़ाना। उनका मेन रीजन क्या है, उनका मेन रीजन है क्योंकि वो पुअर है, दे हैव नो मनी, तो दैट्स व्हाई दे कांट सेंड तो दैट्स व्हाई वो अपनी गर्ल्स को जो उनकी जो गर्ल चाइल्ड है तो वो उनको भेज नहीं पाते। ओके, so however studies have now shown that poverty among the Muslim is an important reason why Muslims girl do not attend school or drop out from school after a few years. So wherever efforts has been made to the rich education to the poor, their Muslim community has shown an interest in sending their girl to school. अब क्या हुआ कि देखो यहाँ पर एक स्टीरियोटाइप बन गया कि मुस्लिम्स जो हैं वो अपने जो बच्ची में लड़कियों को नहीं भेजते स्कूल, उनको एजुकेशन नहीं दिलवाते। लेकिन मेन रीजन क्या पता चला बाद में, मेन रीजन है क्योंकि ये देखा गया कि उनके बीच में वहां मुस्लिम जो होते हैं, मुस्लिम में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है उनके बीच में, इसीलिए वो नहीं भेज पाते। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें कि वेयर एवर एफर्ट्स हैज बीन मेड टू रीच एजुकेशन टू द पुअर, जहां कहीं भी पुअर्स के को तक एजुकेशन पहुंचाने के लिए एफर्ट्स किए गए हैं, so their Muslim community has shown an interest in sending their girls to the school. जहां कहीं भी ऐसे एफर्ट्स किए गए हैं वहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में इंटरेस्ट दिखाया है। For example, in the state of Kerala, the distance between the schools and the home is not much. ठीक है, केरला में स्कूल और होम के बीच का डिफरेंस ज्यादा नहीं है। And there is a good government bus services that help teachers reach school in a rural areas, and over 60% of the teachers are women. अब वहां पर क्या हो रहा है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, बहुत अच्छी बस सर्विसेज प्रोवाइड कराई हुई है, जिसकी वजह से जो टीचर्स हैं वो रूरल एरियाज में स्कूलों में जाते हैं और वहां पढ़ाती हैं। और आप देखते हो कि 60% वहां पर टीचर्स जो है ना वो विमेन ही हैं। ओके, एंड दीज फैक्टर्स हैव हेल्प चिल्ड्रन फ्रॉम पुअरर फैमिलीज इंक्लूडिंग मुस्लिम गर्ल्स अटेंड स्कूल्स इन मच लार्जर नंबर। और ये जो फैक्टर है ये उन बच्चों की हेल्प करता है कि इन बच्चों की जो पुअरर फैमिली से आते हैं, और इसमें मुस्लिम गर्ल्स भी हैं जो उन स्कूलों में आ रही हैं, स्कूल को अटेंड कर रही हैं। और जो उसमें जो ज्यादातर जो नंबर है स्टूडेंट्स का उसमें मुस्लिम गर्ल्स का ही है। So in other states where such efforts has not been made, children from poorer families, whether Muslims, tribal or so-called lower caste, find it difficult to attend school. और ऐसे स्टेट जहां पर इस तरह के कोई एफर्ट्स नहीं किए जा रहे हैं पुअर फैमिलीज के लिए, वहां पर चाहे वो मुस्लिम है, ट्राइबल्स हैं या सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, फाइंड इट डिफिकल्ट टू अटेंड स्कूल, उन सब के लिए मुश्किल हो रहा है उन स्कूलों को में जाना। सो देयरफॉर पॉवर्टी नॉट रिलीजन poverty not religion is the cause for non attendance of Muslim girl in the school. इसीलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पर पॉवर्टी मेन रीजन है,
मुस्लिमों में मुस्लिम गर्ल्स के स्कूल में ना जाने का, ना कि रिलीजन। ओके, तो ये यहाँ पर एक स्टीरियोटाइप के बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। स्टीरियोटाइप में हम लोगों ने ये मान के चल रहे हैं कि मुस्लिम गर्ल्स स्कूल में नहीं जाती, पर मेन रीजन क्या है? पॉवर्टी। ओके, so now the next topic is on being discriminated against. So students, tomorrow we will discuss this topic. So that's all for today. Have a good day.